Namaskar students, welcome again. Today we are doing the revision of chapter number 12. So listen carefully and keep your books with you. So student, this is your chapter number 12, the planet Earth. Fine. So there is some important topics which we are going to study in this chapter. The first is the universe, then star, solar system, earth, satellites, asteroids, meteoroids. We all topics we will discuss in this chapter. Fine. Now next is about the Aryabhat. There is a table in which you can see about the Aryabhat. Aryabhat was the first prominently Indian astronomer. He was also a mathematician who is created with the discovering the zero. He discovered the zero. His work include the Aryabhatiya and the Arya Siddhanta. He had an earth centric views of the universe and believe that the planet move around the sun. इन्होंने सबसे पहले ये प्रूव किया कि जो अर्थ है वो किसके सराउंड मूव करती है, अर्थ सन के चारों तरफ मूव करती है. He believed that planets move around the earth. Planets move around the earth. He was the first astronomer to give the scientific explanations of the eclipse. यहाँ देखिए वर्ड दे रखा है eclipse का. एक्लिप्स क्या होते हैं? एक्लिप्स होते हैं जिसको हम कहते हैं ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जो होते हैं, लूनर एंड द सोलर एक्लिप्स. ही डिस्कवर्ड दैट द एक्लिप्स वर नॉट कॉज्ड बाय द राहु एंड केतु. पहले बोला जाता था राहु केतु होते हैं उसकी वजह से, तो इन्होंने ये प्रूव किया जो एक्लिप्स है राहु केतु की वजह से नहीं, रादर देन मून कमिंग बिटवीन द अर्थ एंड सन. ये होते हैं जब मून जो है सन या अर्थ के बीच में आ जाता है. द फर्स्ट सैटेलाइट वॉज नेम्ड आफ्टर हिम. जो फर्स्ट सैटेलाइट था उनका नाम किसके नाम पर रखा गया? आर्यभट्ट के नाम पे. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज यूनिवर्स, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. गैलेक्सी, स्टार आर बर्निंग बॉडीज ऑफ द कंटेन गैस प्रोड्यूस एन इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट. देन सन, 8 planets and the other celestial bodies. Now come to the next page. There is a fill up, so fill it in your book. First is I am the closest to the sun yet I am the hottest planet. कि मैं सन के पास में नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं hottest planet में काउंट हो रहा हूँ. तो this is the Venus is the hottest planet. Next is I am the largest planet in the solar system. Largest planet is Jupiter. Next is I am the second largest planet in the solar system and have beautiful ring around me. Beautiful rings हैं around me. So answer is Saturn. Fine. Now first topic is universe. सब कुछ important topics ही हम इसमें करेंगे. Just we are doing the revision. जो all matter universe was the concentrated in the one mass, hot eventually exploded with the big bang. यहाँ पे big bang का नाम याद रखेंगे. Universe started expand, get better, this creating more space around the matter. This scattered matter lead to formation is galaxy, star and other heavenly body. अब now next word is a big bang theory. क्या होती है? All of this has been explained a widely accepted theory. इस theory का नाम है big bang theory. The theory explain process the late of birth of a universe. कि हमारे जो universe है वो कहाँ से उसका birth हुआ, कैसे form हुआ. देन इज एक और वर्ड है यहाँ पे मिल्की वे गैलेक्सी. फाइन. जिसको हम कहते हैं आकाश गंगा. देन नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है स्टार. फाइन. स्टार जो सन है वो क्या है? एक स्टार. Star makes the galaxy in the universe. Star are heavenly object that are self luminous. Luminous का मतलब होता है जिनमें खुद की हीट और लाइट होती है. That is they shine by the producing their own light. This incredible amount of heat and light produced by the burning of gases within them. The sun that we see every day as a star, जिसको हम रोज़ देखते हैं वो क्या है? स्टार. देखिए स्टार बहुत सारे होते हैं पर सन जो है नियरेस्ट स्टार है हमारे सोलर सिस्टम में.
यहाँ पे देख कंसल्टेशन, जिसे नक्षत्र भी कहा जाता है। इसके बाद कुछ नक्षत्र के नाम है, उर्सा मेजर जिसे ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है, ओरियन द हंटर एंड लिब्रा द बैलेंस स्केल्स के नाम से। यहाँ देखिए पिक्चर है ओरियन कंसल्टेशंस की। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर बुक इज द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम की डेफिनेशन सबसे पहले हम करेंगे। आर सन together with all planets, they revolve around it. Their satellites or moons, meteoroids, comets and the asteroids from the solar system. Sol in Latin means the sun. Sol is the Latin word. This means is sun, and so the sun and all heavenly bodies related to it make up the solar system. Now solar system from around 4.6 billion years ago इतना पहले बना था। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, द सन एंड प्लैनेट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज हैव देयर ओन ग्रेविटी टू डिफरेंट स्ट्रेंथ दैट पुल ऑन ईच अदर is what the hold them the place in the solar system, keep them where they are. एक जो ग्रेविटी है उसकी वजह से जो प्लेनेट है अपनी जगह पर ही रहते हैं जहाँ पर वो हैं, और अपनी ही डिस्टेंस पर, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या करते हैं, मूव करते हैं अराउंड द सन. Then the earth planet takes a certain amount of time to complete one revolution around the sun. Particular time लगता है, this is called a year. The further a planet is from the sun's longer its year. जो planet जितना दूर होगा सन से उसे उतना ही टाइम लगेगा सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में. अर्थ को कितना टाइम लगता है, अर्थ को लगता है 365 and 1/4 days सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में. Then sun is the center of the solar system. It is the medium size star, yet is the diameter is over the 100 times that of the earth. अर्थ से काफ़ी बड़ा है. सोलर सिस्टम में जो सबसे सेंटर पे कौन है, सन. उसी के क्योंकि चारों तरफ चक्कर लगाते हैं सभी प्लैनेट्स. इट इज़ ओनली द सोर्सेज ऑफ हीट एंड लाइट टू एंटायर सोलर सिस्टम. कीप रिमेंबर दिस, सन इज द ओनली सोर्सेज ऑफ हीट और लाइट फॉर द प्लैनेट. द सन इज यूज बॉल ऑफ द बर्निंग गैसेज. कौन कौन सी मेनली गैसेज हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन एंड हीलियम. फाइन. And its temperatures is about 5,500 degrees Celsius, and now compared to the temperature at which the water boils 100 degrees Celsius. फाइन. देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होता है और इसका टेम्परेचर कितना, यानी इतना ही ज़्यादा क्या है, हॉट है, बहुत ज़्यादा गर्म है. बहुत सारी गैसेज होती हैं. स्पेशल कौन सी गैसेज है, हाइड्रोजन एंड हीलियम. वी डू नॉट फील हीट बिकॉज ऑफ द यूज डिस्टेंस. अब अर्थ से कितना डिस्टेंस है सन का, 150 किलोमीटर. दैट्स वाई इतनी हीट हमें फील नहीं होती है. नाउ नेक्स्ट इज़ द प्लेनेट. अब प्लेनेट के बारे में हम ये जो डायग्राम है उसके ज़रिए मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर रही हूँ. देयर इज़ अ डायग्राम्स ऑफ द सोलर सिस्टम्स. सो सेंटर पॉइंट इज़ द सन. सेंटर पॉइंट इज़ सन, ये सन हो गया. देन प्लेनेट्स मरकरी, वीनस, 2 थर्ड नंबर पे है अर्थ, 4 मार्स, 5th जुपिटर, 6 सैटर्न, 7 पे यूरेनस एंड 8 नंबर पे है आपका नेपच्यून. इनका सीरियल से आपको सबको जो है नेम याद रखना है. नाउ लुक दिस द ऑर्बिट. ऑर्बिट क्या होता है ये देखिए. ये एवरी प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ पर्टिकुलर डिस्टेंस. यहाँ मैंने डॉट लगाए हैं, ध्यान से देखिए. पर्टिकुलर डिस्टेंस है, ये देखिए ये जो डिस्टेंस दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस है जिस पर सारे ही प्लैनेट क्या करते हैं, मूव करते हैं अराउंड द सन. सो दिस डिस्टेंस इज नोन एज ऑर्बिट. क्या कहते हैं इसको, ऑर्बिट. ठीक है. जस्ट बिकॉज सबकी अपनी ग्रेविटी होती है और सभी अपने पर्टिकुलर जगह पर सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, एक दूसरे से ये ना तो मिलते हैं और ना ही क्रॉस करते हैं. फाइन. सो दीज आर द ऑर्बिटिकल प्लैनेट्स. एवरी प्लैनेट्स, चाहे वो कोई सा भी है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, जो भी प्लैनेट्स हैं इनको सभी को अलग अलग टाइम लगता है किसके चक्कर, चारों तरफ चक्कर लगाने में,
सन के। अब यहाँ पे सबका टाइम दे रखा है, इस टेबल को अच्छे से वॉच करेंगे। अर्थ का टाइम पता है 365 डेज। जो जितना दूर होगा उसको उतना ही टाइम लगेगा सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है आपका अबाउट द प्लूटो। प्लूटो का नाम सुना है। प्लूटो जो है कंसीडर्स कहा जाता था प्लूटो को। पहले प्लूटो भी था एक प्लेनेट्स कंसीडर माना जाता था 9 प्लेनेट से, लेकिन आफ्टर द 2006 में इसको ड्राफ्ट प्लेनेट डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में। तो ये एक तरह से ड्राफ्ट प्लेनेट्स में कंसीडर होता है आफ्टर द 2006। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द अर्थ एंड देन मून, सैटेलाइट एंड मेट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर करेंगे। सो कीप रिमेंबर ऑल थिंग विच वी हैव डिस्कस्ड टुडे। थैंक यू।